is nothing but spending time with God. प्रार्थना परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। It's a communication with God. ये परमेश्वर से बातचीत करना है, Talking to God. परमेश्वर से बातें करना है, Listening from God. परमेश्वर से सुनना है। We will meditate on power of prayer and its blessings. हम प्रार्थना की सामर्थ्य और उसकी आशीष पर मनन करने वाले हैं। There is power in prayer, Jesus himself said. स्वयं यीशु ने कहा कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। When he came to this world, he prayed. जब वो इस संसार में आया उसने प्रार्थना की। Whenever he get time, he prayed. जब भी समय मिलता वो प्रार्थना करता था। When he was on this earth, जब वो इस पृथ्वी पर था, he lived like us as a physical body. वो तो हमारी जैसी ही शारीरिक देह में रहता था। And then how he got such a great power in his body? तो फिर कैसे उसके शरीर में इतनी महान सामर्थ्य थी? People who touched his cloth received healing immediately. जो लोग उसके वस्त्र को छूते वो तुरंत चंगाई पा लेते थे। Miracles happened. चमत्कार होते थे, Wonders happened. अद्भुत काम होते He थे। walked on the sea. वो झील पर चला, He raised the dead. उसने मुर्दों को जिलाया, He turned the water into wine. उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। Such a great power. इतनी सामर्थ थी। In his word there was a power. उसके वचनों में सामर्थ थी, In his deeds there was a power. उसके कर्मों में सामर्थ थी। And whenever he said miracles happened. और जब भी उसने कहा तो चमत्कार हुए। By his look demons ran away. उसके देखने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती By थी। his speech the wonderful things happened. उसके बोलने से अद्भुत काम होते थे। Dead people raised. मुर्दे जिंदा होते थे, Sick people became a healthy people. बीमार लोग चंगे हो जाते थे, Sinners became saints. पापी लोग संत हो जाते थे। Where this power generated? ये सामर्थ कहाँ से शुरू होती थी? He showed us the example. उसने उसका उदाहरण दिया है। Before he approached the people, लोगों तक पहुंचने के पहले, before he healed the sick, बीमारों को चंगाई देने के पहले, he did something behind the screen. उसने पर्दे के पीछे कुछ काम किया। What Jesus did. यीशु ने क्या किया? Before he appeared before people, what he did in behind. लोगों के सामने आने के पहले वो पीछे क्या करता था? That is the mysterious power of Jesus. यही यीशु की रहस्यमय सामर्थ है। What he did. उसने क्या किया? The Bible says he fasted. बाइबल कहती है उसने उपवास किया। Bible says he prayed. बाइबल कहती है उसने प्रार्थना की। He talked to Father. उसने पिता से बातें की। So that is the power of Jesus. यही तो यीशु की सामर्थ That he है। taught his disciples the same thing. और फिर उसने अपने चेलों को यही सिखाया। He said, disciples, you pray. उसने चेलों से कहा तुम प्रार्थना करो। Before you go and preach, you pray. जाकर प्रचार करने के पहले प्रार्थना करो। Disciples asked Jesus, teach us how to preach a message. चेलों ने यीशु से पूछा कि हमें प्रचार करना सिखा। And disciples asked Jesus, would you please tell us how to cast out demons and how to heal sick people? और जब चेलों ने यीशु से पूछा, यीशु हमें बता कि दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाले और बीमारों को कैसे चंगाई दे। How to preach a wonderful messages. अद्भुत संदेश कैसे प्रचार कर सकते How to हैं? preach a life-changing messages. जीवन बदलने वाला संदेश कैसे प्रचार कर सकते हैं? Jesus said the truth. यीशु ने सच्चाई बताई। He taught them the secret. उसने उन्हें भेद How सिखाया। many would like to know that secret? कितने लोग वो भेद जानना चाहते He हैं? taught that secret to disciples. उसने चेलों को ये भेद सिखाया। What was that secret? और वो भेद क्या था? Jesus said, pray, यीशु ने कहा प्रार्थना करो, pray. प्रार्थना करो। He never taught them how to preach, उसने उन्हें ये नहीं सिखाया कैसे प्रचार but करें, he taught them how to pray. लेकिन कैसे प्रार्थना करें ये सिखाया। Matthew chapter 6 verse 6 to 14, he taught them how to pray. मत्ती अध्याय 6 वचन 6 से 14 में उसने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। If Jesus taught his disciples prayer, that means there is power in prayer. यदि यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में सिखाया तो प्रार्थना में सामर्थ है। So if you go to Jesus and ask Jesus, give me more power, Jesus will say, pray more. अगर आप यीशु के पास जाकर उससे कहे मुझे और सामर्थ दे, तो यीशु आपसे कहेगा कि और ज्यादा प्रार्थना करो। For Apostle Peter, 24 hours, for us also 24 hours. प्रेरित पत्रस के लिए 24 घंटे और हमारे लिए भी 24 घंटे ही है। All the men and women of God in the Bible, they got the same 24 hours time. We also got the 24 hours time. बाइबल के सभी जितने भी स्त्री और पुरुष थे उन सब के पास में 24 घंटे का समय है। हमारे पास भी 24 घंटे का समय How है। are we using our time? हम अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे That's हैं, what will happen to our life. वही तो हमारे जीवन के साथ में होगा। How do you use your time? अपने समय का उपयोग कैसे That करते will हैं, reflect on your life. वो आपके जीवन को दर्शाते चले जाएगा। If you are spending your time in exercise, अगर आप कसरत करते हुए समय बिताएंगे definitely you can see some changes in your physical body. तो निश्चय आप अपने शारीरिक देह में बदलाव देखेंगे। If you spend time eating, अगर आप खाने में समय बिताते जाएंगे, definitely after 3 months we will see a lot of change in your body. 3 महीने के अंदर आपके शरीर में बहुत से बदलाव देखे जाएंगे। Then everybody will say, I think this brother is eating more. और सब लोग ये कहेंगे मुझे लगता है कि ये भाई बहुत ज्यादा खाना खा रही And है, sister is eating more. ये बहन बहुत ज्यादा खा रही है, Maybe spending much time at eating plate. शायद खाने के लिए
ज्यादा समय बिताते जा रहे हैं। That is why some changes has come. और इसलिए इतने बदलाव आए हैं। So by looking at you, some people can recognize something in your life. तो आपकी ओर देखकर कुछ लोग आपके जीवन के अंदर की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते The हैं। same way, उसी तरह से when the people of God see the power of God going out of your body, जब लोग परमेश्वर की सामर्थ को आपके शरीर से निकलते हुए देखेंगे, when the people of God look around you, the power of God is walking with you. जब परमेश्वर के लोग देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ में चल रही है, There is power in your words. आपके शब्दों में सामर्थ There is है, power in your deeds. आपके कामों में सामर्थ There is है, power in your speech. आपके बोलने में सामर्थ है, Then people of God will recognize he is spending his time in prayer. तो परमेश्वर के लोग जानेंगे कि ये प्रार्थना करने में समय बिता रहे हैं। That is why we can see some change in his life. और इसलिए हम इनके जीवन में बदलाव देख सकते My हैं। dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, change can reflect others. बदलाव दूसरे लोग देख सकते हैं। Your change can influence your family. आपके अंदर आया बदलाव आपके परिवार के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, Can influence people around you. आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव डाल सकता That is है। why Jesus taught them how to pray. और इसलिए यीशु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। So there is power in prayer. और इसलिए प्रार्थना में सामर्थ It's है। not the power of prayer. ये प्रार्थना की सामर्थ नहीं है, It's the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ It है। generates in prayer. ये प्रार्थना में उत्पन्न होती Some है। people will think power of prayer is different, God's power is different, Holy Spirit power is different. कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर की सामर्थ अलग है, प्रार्थना की सामर्थ अलग है, पवित्र आत्मा की सामर्थ No, अलग no, no, है। no. नहीं, When we are spending time with God, जब हम परमेश्वर के साथ में समय बिताते when हैं, we put all of food one side, अपने भोजन को दूर कर देते हैं when we take time to pray, और प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं, that means we are denying our food. इसका मतलब हम अपने भोजन का इनकार कर रहे We are हैं। giving priority to God's presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता दे We are रहे हैं seeking God's face. और परमेश्वर के चेहरे को निहार रहे हैं। Then you are giving priority to God. तो आप परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं Importance to the Creator. और सृष्टिकर्ता को महत्व दे रहे So when हैं। we spend time with God, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, automatically His power will generate in our life. अपने आप उसकी सामर्थ हमारे जीवन में बढ़ती चली How जाएगी। many of you saw magnet? कितने लोगों ने चुंबक देखा है, How many of you see the hairpin? कितने लोगों ने हेयरपिन देखा है, Everybody saw. सबने देखा है। So magnet has power. चुंबक में शक्ति होती है Hairpin doesn't have any power. और हेयरपिन में कोई भी सामर्थ नहीं होती है। The magnet, if you take to the any nails or anything, it will immediately attract. अगर चुंबक को आप किसी कील के पास में लेकर जाए तो तुरंत उसे खींच लेता It है, will pull those iron plates. वो लोहे की प्लेट्स को खींच लेता है, All iron pieces will come to the magnet immediately. या फिर लोहे के टुकड़े तुरंत चुंबक के पास आकर चिपक You जाते take you a हैं। hairpin, nothing will happen. आप हेयरपिन वहां पर लेकर जाइए, हेयरपिन को कुछ नहीं Even होगा, doesn't help other hairpin also. वो दूसरे हेयरपिन की मदद नहीं कर सकती है। But the same hairpin, लेकिन वही हेयरपिन keep it little time with the magnet. आप कुछ समय तक उसे चुंबक के साथ चिपका कर रखिए, Keep it with the magnet उसे चुंबक के साथ रखिए for a little while. कुछ समय के लिए, Then take it out और फिर निकाल लीजिए and take this hairpin to other hairpin. और फिर इस हेयरपिन को दूसरे हेयरपिन के पास में लेकर What जाइए। does it do? तो फिर क्या होता है, It attracts immediately. वो तुरंत सबको खींचने लगती It है, catches immediately. वो तुरंत खींचने लगती You know, है। all the small pins, just put it down there and take this hairpin, which spend time with the magnet. You know, it has a power to attract everyone and collect all of them. छोटी पिन को नीचे बिछाइए और इस चुंबक को लगी हुई हेयर पिन वहां पर लेकर जाइए तो वो खींचेगी, क्योंकि इसने चुंबक के साथ में समय बिताया था, इसलिए उसके गुण इसमें आ गए हैं। Previously, it doesn't have that power, उसके पहले तो उसमें ये सामर्थ नहीं थी, but it spent little while time with the magnet. लेकिन उसने चुंबक के साथ में कुछ समय बिताया है। You know, that the size of the hairpin not changed, हेयर पिन का आकार भी नहीं बदला है, height was not changed, उसकी ऊंचाई नहीं बदली है, everything was the same. बाकी सब कुछ एक जैसे ही है, There is a lot of power took place. लेकिन इसमें बड़ी सामर्थ आ गई है। The power of God will work through prayer. परमेश्वर की सामर्थ प्रार्थना के द्वारा काम करती है। No, the power of prayer, its blessings. प्रार्थना की सामर्थ और उसकी आशीषें लिख The लीजिए। first point, पहला पॉइंट है peace that passes understanding when you spend time in prayer. Philippians 4:6-8. फिलिपियों 4:6 से 8 कहता है, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो आप शांति पाते हैं जो कि समझ से परे होती है। When we cast all our worries and cares upon the Lord and start praying to God and worshiping God, praising God, that time what happens? Peace that passes understanding. और जब हम अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ देते हैं और हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो क्या होता है, समझ से परे शांति हमारे मन में आती है। यह ऐसी शांति है जो कि हमारे समझ से परे होती Prayer है। is nothing but spending time with God. प्रार्थना और कुछ नहीं, बस परमेश्वर के साथ समय बिताना है। It's a communication with God. ये परमेश्वर से बातचीत करना है, Talking to God. परमेश्वर से बातें करना है, Listening from God. परमेश्वर से सुनना है। Before prayer, full of disturbance, प्रार्थना के पहले डिस्टर्बेंस से भरे होते हैं, full of trouble.
परेशानी से भरे होते हैं, lot of confusion. बहुत सी गड़बड़ी होती है, So many thoughts are running in your mind. आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। How can I finish that work? मैं वो काम कैसे पूरा How करूं? can I get money? कैसे पैसा मिलेगा? How can I buy this? मैं कैसे ये खरीद सकता How हूँ? can I overcome financial problems? आर्थिक समस्या पर कैसे जयवंत हो सकता What I हूँ? have to say to the authorities? अधिकारियों से मुझे क्या कहना होगा? Lot of confusion. बहुत सी गड़बड़ियां हैं, But casting all your cares upon the Lord in prayer, लेकिन प्रार्थना में अपनी सारी चिंता आप प्रभु पर डाल देते हैं what is happening? तो फिर क्या होता है? The peace will pass through your body. शांति आपके मन में आ जाती है। The peace of Christ will pass through our thought life. मसीह की शांति हमारे विचार के जीवन में आ जाती है। After the prayer, प्रार्थना के बाद full of peace, शांति से भर जाते हैं, no disturbance, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, no confusion, कोई गड़बड़ी नहीं, full of confidence. भरोसे से भर जाते हैं। God will take care of me. परमेश्वर मेरी देखभाल He करेगा, will bless me. वो मुझे आशीष देगा, I know He will take care मैं of me. जानता हूँ वो मेरी देखभाल करेगा। When the peace comes and fills you, that means God answered your prayer. जब शांति आपको भर देती है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। And then the second one, और फिर दूसरा पॉइंट है, in prayer, you will get the help in the time of temptation. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी परीक्षा के समय आपको सहायता मिलती है, मदद मिलती है। You know, so many temptations every one of us has to face. हर एक व्यक्ति को बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। The day we born till we die in Christ, we have temptations on this. earth. हमारे जन्म से लेकर मसीह में हमारे मरने तक हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हमें मरने तक परीक्षा का सामना करना है। 1 Corinthians chapter 10 verse 13, so many temptations comes around. पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13 कहता है बहुत सी परीक्षाएं होती हैं। Every age there is a हर temptation. एक उम्र की परीक्षाएं होती हैं। My dear children, brothers and sisters, friends, you have to understand, till we say goodbye to the earth, we have temptation. मेरे भाइयों और बहनों, जवान बच्चों, निश्चित जब तक कि हम जीवित हैं हमें परीक्षा का सामना करते चले जाना होगा। But pray, your prayer life will help you to overcome. लेकिन आपके प्रार्थना का जीवन आपको जयवंत होने में मदद करेगा। Temptations through anger, क्रोध के द्वारा परीक्षा, to lust, desire, अभिलाषा की इच्छाएं, immoral desire. अनैतिक इच्छाओं के लिए परीक्षा होती है। When you pray, the fire of God is around जब you. आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आग आपके आसपास होती है। Third, quickly write it down. तीसरी बात जल्दी से लिख लीजिए, When you pray, God releases wisdom how to overcome the situation, how to walk with God, how to be blessing to your family. जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि देता है कि कैसे आप जयवंत हो जाए, अपने परिवार के लिए आप कैसे आशीष हो सकते हैं, इसके लिए बुद्धि देता है। James 1:5. याकूब 1:5। And Solomon prayed, he received a wisdom. सुलेमान ने प्रार्थना की और उसने बुद्धि प्राप्त की। You need to pray and receive it from God. आपको प्रार्थना करके परमेश्वर से इसे पाना होगा। And then fourth one, और फिर चौथी बात, when you pray, what is happening? जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? Physically, you will be blessed. शारीरिक रूप में आप आशीष पाते हैं, You will receive blessings from God. आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं। All your needs will be met according to Matthew chapter 6 verse 11 to 33. मत्ती अध्याय 6 वचन 11 और 33 के अनुसार आप आशीष प्राप्त करते हैं। Matthew chapter 6 verse 26 to 33. मत्ती अध्याय 6 वचन 26 से वचन 33 तक। Philippians 4:19. फिलिपियो 4:19 भी यही कहता The है। fifth one, पांचवी बात, healing. You need healing for your physical body, healing for your spiritual. आप चंगाई पाते हैं, शरीर में चंगाई पाते हैं, आत्मा में चंगाई पाते When you हैं। spend time in prayer, you will be healed physically and spiritually. जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं तो आप चंगाई पाते हैं, शरीर में और आत्मा में आप चंगाई प्राप्त करते हैं। Then sixthly, और फिर छठी बात, this is also important. ये भी महत्वपूर्ण है, As a children of God, परमेश्वर के संतान के रूप you know, में when you pray and spend time, you will get forgiveness from God. Matthew chapter 6:12, Book of Acts chapter 8:22. मत्ती अध्याय 6:12, प्रेरितों के काम 8:22 के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करते हैं। James 5:14 to 16 also. याकूब अध्याय 5 वचन 14 से 16 भी यही कहता है। We need forgiveness for breakthrough. हमें बदलाव के लिए क्षमा की जरूरत है। We need to forgive others and we need to get forgiveness from हमें God. दूसरों को क्षमा करना है, हमें परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना है। Matthew 6:14 says, if you forgive your enemies, God will also forgive you. मत्ती 6:14 कहता है कि यदि तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। Seventh point, सातवीं बात, when we pray and spend time, help with prayer. जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने में हमें मदद मिलती है। Holy Spirit of God will help us how to pray and how to walk with God in prayer life.
प्रार्थना करने में परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करेगा और प्रार्थना में जीवन के लिए वो हमारी सहायता करता चला जाएगा। Romans 8:26 and 27, the Holy Spirit of God will help you how to pray. रोमियो अध्याय 8 वचन 26 और 27 कहता है परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कि कैसे प्रार्थना करें। The next one, अगली बात, this is also important. ये भी महत्वपूर्ण है। As the children of प्रभु God, के संतान के रूप में when you spend time in prayer, when we spend time in prayer, जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं all good things will take तो place. सारी अच्छी बातें होने लगती है। Psalms 84 verse 11, भजन 84 वचन 11, James 1:17, याकूब 1:17, Romans chapter 8 verse 28. रोमियो अध्याय 8 वचन 28। How many would like to have all these blessings? कितने लोग ये सब आशीष पाना चाहते हैं? The peace that passes understanding, शांति जो समझ से परे होती है, help in time of temptations, troubles and struggles, परेशानी, समस्या और संकट के बीच में परमेश्वर की सहायता, wisdom to overcome every situation, every crisis in your life, अपने जीवन के हर एक संकट के ऊपर जय पाने के लिए बुद्धि, physically always you will need the power of God. शारीरिक रूप में हमेशा आपको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत होती है All necessities will be fulfilled, और सारी जरूरी बातें पूरी हो जाती है and healing both physically and spiritually, और चंगाई आती है, शारीरिक और आत्मिक चंगाई आती है, forgiveness from God and people, लोगों से और परमेश्वर से क्षमा मिलती है, help with prayer, प्रार्थना में मदद मिलती है, all good things. सारी अच्छी बातें मिलती How many है। would like to wish to receive all these things? कितने लोग ये सब कुछ पाना चाहते हैं? अपने हाथ उठाइए। I wish that everyone should receive it. मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसे प्राप्त कर The लें। power of prayer and its blessing. प्रार्थना की सामर्थ और उसकी आशीषें। Book of Daniel chapter 10 was 11 to 12. When Daniel prayed 21 days, he received answer. दानियल अध्याय 10 वचन 11 और 12 में हम देखते हैं जब दानियल ने प्रार्थना की तो उसे उत्तर मिला। Matthew 18:18 to 20, pray always. मत्ती 18 से 20 तक हमेशा प्रार्थना करें। Luke 18 was 1 to 8, pray. लूका अध्याय 18 वचन 1 से 18 प्रार्थना First कीजिए। Thessalonians chapter 5 was 16 to 18, pray without ceasing. पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 वचन 16 से 18 निरंतर प्रार्थना करें। Ephesians chapter 6 verse 18, pray in the spirit. इफिसियों अध्याय 6 वचन 18 आत्मा में प्रार्थना करें। Jude chapter 1 verse 20 to 23, pray in the Holy Ghost. यहूदा 1 वचन 20 से 23 पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। Matthew 7 and 8, pray, ask it shall be given to you. मत्ती अध्याय 7 वचन 7 और 8 प्रार्थना करें, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Mark chapter 11 verse 22 to 24. मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से 24 तक Oh, Jesus taught us how to pray. यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है Let's not wait anymore. और हम अभी राह देखते न Let's रहें not delay anymore. और देरी न करें। Are you ready to pray? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार Cry हैं? out to God. प्रभु से प्रार्थना Your कीजिए। daddy is ready. आपके पिता तैयार Our हैं, daddy is ready. आपके पिताजी तैयार हैं। Listen. नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। प्रभु से ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो मेरा स्वस्थता प्रदान जरूर मिलेगा। 5-6 साल से मेरे घुटने में बहुत दर्द था और मेरे शरीर इतना भारीपन था कि मैं क्या बताऊँ। और जब मैं यहाँ आके खड़ी हुई उसके बाद मेरा पूरा शरीर इतना हल्का हो गया प्रेयर करने के बाद, और घुटने में भी अब इतना दर्द नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिला है मुझे आज। अभी बिल्कुल हल्का है शरीर और कोई दर्द नहीं है, कुछ पेन नहीं है। हाउसिंग कॉर्पोरेशन में वर्किंग का इंस्पेक्टर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं और स्टेट का 23 जिलों के लिए मैं प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। कमजोरी के कारण मैं बीमारी हो गया। एक महीने से बहुत परेशानी हो रहा था। कैंप में जाने के लिए बहुत और कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं इसके कारण बहुत परेशानी हो रहा था। जब पादिल साहब ने प्रार्थना किया और करने के समय में विक्टर जी अन्ना आप पीछे है बोलकर मुझे बुलाया, तब मैंने देखा और किसी को बुला रहे बोलकर आगे पीछे देखा और मुझे लगा है परमेश्वर के दास मुझे बुला रहा है। जब उसको सुना और मैं अपने आप को शरीर को चेक करने लगा। चेक करने के समय में अचानक मेरे सारे कमजोरियां 5 मिनट के अंदर में चला गया और मैं सामर्थ्य प्राप्त किया हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे अपने परमेश्वर के दास के द्वारा बुलाया है
और परमेश्वर का प्रेम को इस दुनिया में जरूर दिखाऊंगा। सुवार्ता चैनल हम देखा है, जब भी पास्टर सुवार्ता बोल रहा था, अब हम तो बहुत खुशी हुआ पास्टर से मिलना, बात करना और प्रेयर करने को बहुत खुशी था। रात में ज़्यादा बुरा सपना और बुरा डरावनी था, नींद नहीं आता था, बहुत तलक नहीं होता था। जब भी पास्टर प्रार्थना किया है हमको स्वस्थ हुआ है, दुष्ट प्रॉब्लम दूर हो गया है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। यीशु मसीह ने चंगा दिया है, यीशु मसीह ने ठीक किया है। बीते 5-6 साल से मेरे आंखों में एक छोटा सा खाट होने के कारण मेरे आंखों से पानी गिर रहा था और बहुत परेशानी हो रहा था। और इसके साथ साथ जो पास में रहने वाला चीजें मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जब पादरी साहब ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद में मुझे पास में वाल रहने वाला भी अभी अच्छे से दिखाई दे रही है। 2 साल से अभी नींद नहीं आती थी, सपना में पूरा कोई मरे जैसा लगता था। और जब बाइबल पढ़ने टाइम में एक अलग रखती थी और सो जाती थी। 2 साल से नींद नहीं आती थी, अगर नींद पड़ी भी तो उस कमर में बीच में कोई मरे जैसा आ जाएगा। अभी बहुत अच्छा है, इस प्रभु मेरे को बहुत अच्छा किया है और बहुत हल्का हो गया, मेरा दुष्टात्म हो गया, सब अच्छा। 6 साल से चश्मा लगा के मैं बहुत परेशानी हो रहा था और जो कुछ भी देखता हूँ दुबलपन में देखती है। 6 साल से इसके कारण मैं परेशान हो रहा था। अभी परमेश्वर की दास प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में परमेश्वर ने मुझे अच्छा से चंगा किया, मैं अच्छे से देख सकता हूँ और यहाँ रहने वाला सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रही है। मेरा नाम शैलजा है, मेरे पति का नाम मोहन है। हमारी शादी को 10 साल हो गए लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हैं। आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे। पिछले साल जनवरी में पास्टर स्टीफन पॉल जी ने प्रार्थना करी थी, तो पास्टर जी ने कहा कि अगले साल ही आपके घर में झूला होगा। जिसको बच्चे नहीं हैं वो एक हाथ परमेश्वर की ओर करके दूसरा अपने गर्भ पर रखिए और मिलकर प्रार्थना करने के लिए कहा। स्टीफन पॉल जी ने कहा, जो बहनें खड़ी हैं वो अपने गर्भ पर हाथ रख के लोरिया गाइए। मुझे तो शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने 2 बार लोरिया गाई ला 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 करके। तो मार्च के महीने में परमेश्वर ने मुझे बेटी से आशीषित किया।